ابو کی لاڈلی بیٹی تھی۔ سب سے ظالم جو ہے نا پولیس ہے۔ ہر جگہ پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین اور بچوں پر تشدد کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے۔ پاکستان میں بیشتر ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی، بچوں پر تشدد، ان کا حق کھانا، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا، ان کی جگہوں پر قبضہ کرنا جیسے واقعات بے تحاشا موجود ہیں۔ آج ہم ایک دکھ کی داستان اور ایک دکھ بھری داستان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب ہم نے ان کا یہ واقعہ سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم نے یہ سوچا کہ اس پر رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایک پروگرام ہے حق کی آواز، اور حق کی آواز بلند کرنا ہے۔ اور آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اکرم صاحب موجود ہیں۔ ان کی بیٹی کو نہ صرف اغوا کیا گیا بلکہ نکاح کے اوپر نکاح ہوا اور ان کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا گیا، ان کے مکان پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور ان کی گاڑی بھی چھین لی گئی۔ باقی تفصیلات ان سے جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو واقعہ ہے وہ کس طرح ہوا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اکرم ہے، ضلع تحصیل راولپنڈی ہے، تھانہ چونترا میڈا۔ تو میرے گرائے 6 براون 6 گنڈین، افسر نستر، شفقت، دلاور، یوسف، رضوان، ان میں کوئی پولیس میں ہے، کوئی رینجر میں ہے۔ 2012 میں انہوں نے میری ایک بچی کو اغوا کروایا 13 سال کی عمر میں، جس کی وجہ سے اسلام آباد والا میرا گھر اور سامان قبضہ ہے۔ جب میں شہزاد ٹاؤن میں انصاف لینے گیا، درخواست دی، تو انہوں نے اخباروں کے کاغذ جلا کر مجھے 295 میں جیل میں ڈلوا لیا۔ اب 2019 میں یہ میری بچی ہے، حافظ قرآن ہے، اب اس کی عمر 16 سال جا رہی ہے۔ اس وقت یہ 2019 میں اس کی 14 سال تھی۔ یہ پرانی دشمنی ان کے ساتھ چل رہی۔ اس بچی کو 10 دن انہوں نے اغوا رکھا، گھر کا سامان، گاڑی، ہونڈا گاڑی اور 4,27,000 گھر کا قیمتی سامان لوٹ لیا اور 10 دن اغوا رکھا۔ اور انہی کی ڈر کی وجہ سے بچی کا پہلے میں نے نکاح نامہ تیار کیا ہوا تھا کہ رخصتی 18 سال کی عمر ہوگی، اور جو گھر میں ابھی میں نے 10 لاکھ روپے لگایا لنٹر میں گھر کا نیا تیار کیا، وہ اس بچی کا حق تھا، وہ اس بچی کا مستقبل تھا۔ یہ گاڑی اس بچی کی تھی، یہ 4,27,000 اس بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے میں نے رکھے تھے۔ میں گردے کا مریض ہوں، یہ دوسری میری بچی ہے جو اب 15 سال میں جا رہی، یہ معذور ہے۔ میں 10 دن بے خبر رہا، 10 دن انہوں نے بچی کو ڈرایا، دھمکایا، سائن انگوٹھے کروا کر بچی سے نکاح نامہ تیار کر لیا اور قتل کی دھمکیاں دی۔ طاہر ایوب چکری چوکی کا ASI طاہر ایوب ان کا سپورٹر نکلا۔ SHO چونترا اسلم عزیز نیازی ان کی سپورٹ کرتا رہا۔ 4 ماہ تک پرچہ نہیں کیا گیا اور 4 ماہ بعد 70,000 لے کر FIR تو کی گئی، لیکن ان کی سپورٹ میں کی گئی۔ اس وقت ماشاءاللہ کامران صاحب SP صاحب اور ASP صاحب انہوں نے مجھے بلایا، آپ کو انصاف دیا جائے گا، لیکن وہ بھی ان کے سپورٹر نکلے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اداروں کی آڑ میں لوگوں کی بچیوں کو اغوا کرنا، نکاح کے اوپر نکاح کرنا، گھر کا سب کچھ لوٹ لینا، پھر نہ سنا۔ CPO صاحب کو جو میں نے درخواست دی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالی گئی ہیں۔ اب SP اور ASP یا تو بک گئے ہیں یا ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہم ہوٹل کی سراؤں میں، فٹ پیریوں میں 2 سال سے رول رہے ہیں، نہ گھر ہے، نہ سامان ہے، نہ خوراک ہے۔ تو ملک صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ جائیداد قبضہ کی گئی ہے اور مکان قبضہ کیا، یہ مکان کو گھیرا ہے 2019 سے لے کر اب تک مجھے گھر میں نہیں جانے دیا جا رہا، اور یہ مجھے انصاف چاہیے۔ بچی کو 10 دن اغوا رکھا اور نکاح کے اوپر نکاح کیا، 4,27,000 ہونڈا گاڑی ان سے برآمد ہو چکی ہے، یہ سامان مجھے دیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر اس میں بچیوں کو لے کر راول ڈیم کے اندر کود گیا، کیونکہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اگر
मोटर वे में गाड़ी के नीचे छलांग लगाया। एसपी कामरान खुद ज़िम्मेवार हो, तुझे अल्लाह का वास्ता। मैंने पहले एसपी साहब आपको कहा था, आपने मुझे कहा था कि बच्ची का निकाहनामा पेश करो, मैंने बोला करूँगा, पहले वाला निकाहनामा बच्ची को पेश करो, मैंने बोला करूँगा। आप इंसाफ देते देते बिक गए। तो मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, एसपी और एएसपी आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करो। SHO चौंतरा अब नया आया अब्दुल अजीज़ नियाज़ी, जो कि खोती के कन घोड़ी को लगाकर मुझे ब्लैकमेल करवाया, और मैं कभी भी खामोश नहीं, मेरी आवाज़ को कोई नहीं था, मर सकता हूँ, मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। मुझे इंसाफ चाहिए। जो उनके साथ अन्ने खान, फन्ने खान, नन्हे खान हैं, उन्हें ये बोलना पड़ेगा कि हमें 3 बीवी 3 तलाक़ें हों, और हलफ देकर कहेंगे कि तानिया अकरम 14 साल बच्ची को, मदरसे की तालबा को 10 दिन अगवा नहीं रखा। उन्हें हलफ देना पड़ेगा, उन्हें ये हलफ देना पड़ेगा कि घर का सामान, टीवी, जनरेटर, सिलाई मशीन, 4,27,000 हुंडा गाड़ी, ये नहीं लूटा। ये भी हलफ देना पड़ेगा उन्हें, ये भी हलफ देना पड़ेगा कि निकाह नामा उनकी आंखों के सामने मौजूद था। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके साथ ये वाक़या हुआ, हम देखते हैं कि अगर इस्लामाबाद शहर में अगर किसी औरत के साथ कोई इस तरह का हादसा होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के इदारे जो है वो फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं। एहतजाजी मुजाहरे भी हमने देखे हैं, प्रेस क्लब के सामने धरने भी देखे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके साथ किसी इदारे ने कोई रब्ता किया, कोई आपको अपना होप हुई कि शायद ये इदारा जो है मेरे साथ कोई हेल्प करेगा या मेरे साथ चलेगा? किसी ने कोई उम्मीद दिलाई आपको? किसी इदारे ने उम्मीद नहीं दिलाई। 2 साल से मैं इस्लामाबाद की प्रेस क्लब होटल की सरों में रह रहा हूँ, बच्चियाँ लेकर। ना मेरे पास घर है, ना सामान है, ना खुराक है, ना उदियात है। किसी इदारे ने, मैं सैयद इकरार हसन साहब को बहुत अपीलें की, आप मेरी आवाज़ बने। डेली पाकिस्तान वालों से अपीलें की हैं, उर्दू पॉइंट वालों से अपीलें की हैं। अलबत्ता नया पाकिस्तान वाले ने 30,000 लेकर फराड किया कि मैं CPO से काम करवाऊँगा, और बाकी किसी ने भी कोई ताउन नहीं किया। 2 साल से हम इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप इस वाक़े से पहले की थोड़ी बात करते हैं, इस वाक़े से पहले ज़ाहिर बात है एक आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपकी एक कंप्लीट फैमिली थी, और इस वाक़े के बाद जब आप उस कंप्लीट फैमिली के बाद आप जब ये वाक़या हुआ है, उस वाक़े के बाद आप कभी एक पार्क में नज़र आते हैं, आप कभी एक पार्क में नज़र आते हैं, कभी प्रेस क्लब के सामने बैठे नज़र आते हैं। क्या समझते हैं कितना दुख होता है जवान औलाद को साथ लेकर? अब बहुत दुख है जी, मुझे तो इन्होंने दुखी कर दिया, क्योंकि बीवी मर गई, गुर्दा बेचा हुआ है। पहले मैं माशाल्लाह 10 गाड़ियाँ थी मेरे पास, हो ये वो मैं असल बच्ची की वजह से डैमेज, जो बीमार है, थैलेसीमिया के मरीज़ है, तो बरकफ जो है ना ज़ालम के साथ, तो ज़ालम है, हम मज़लूम हैं, हम पैसा भी नहीं लगा सकते, हमारी कोई सपोर्ट भी नहीं है। उनके साथ अन्ने खान, फन्ने खान, पुलिस, और सबसे ज़ालिम जो है ना पुलिस है, जो कि 10 दिन तक को अगवा रही है बच्ची। उनके ऊपर सैन अंगूठे हुए हैं, 4 फार्म भी तैयार हो गए हैं। SHO चौंतरा असलम अजीज़ नियाज़ी वो फार्म देख रहा है, निकाह वाले, मुझे वो फार्म नहीं दिखा रहा। तो बस अल्लाह करे कि हमें इंसाफ मिल जाए। मुझे चीफ जस्टिस से और चीफ आर्मी से अपील करता हूँ कि वो मुझे इंसाफ दें। इसमें बड़े ये ज़ोरावर हैं, 2 रंजर में हैं, जो 6 भाई हैं ना जिन्होंने बच्ची को अगवा रखा और ज़्यादती का निशाना बनाया, 2 पुलिस में हैं, और इनकी सपोर्टें काफ़ी हैं। तो मेरी बच्ची को यही है कि अगर इंसाफ ना मिला वो खुरसोजी करेगी। इसके जो है ज़िम्मेवार SP कामरान होंगे, जिन्होंने अभी मुझे मायूस किया हुआ है। हमारे साथ वो बच्ची भी मौजूद है जिसका निकाह के ऊपर आप दोबारा निकाह किया गया, उनको अगवा किया गया, और 10-15 दिन के बाद दोबारा निकाह करके तो उनको यहाँ पर लाया गया, और उसके बाद जो है उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लिया। उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े दुख के ऊपर वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम तानिया अकरम है। आज से 2 साल पहले कुछ गुंडे आए, मेरे अब्बू घर में नहीं थे, शाम का टाइम था, कुछ गुंडे आए और मुझे उठा कर ले गए, जिनमें से 2 की शक्ल मैं पहचानती हूँ। 10 दिन उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, जुल्म करते रहे। 10 दिन के बाद यूसुफ नामी शख्स के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। 1 माह तक वो जुल्म करते रहे, और 1 माह के बाद मैं फूफो की मदद से वहाँ से निकली। धमकियाँ फिर मिलती रही, तुम्हारे अब्बू को मार देंगे, तुम्हारी बहन को मार देंगे। मेरा अब्बू और बहन से कोई रब्ता नहीं था, वो यहाँ पे नहीं थे, वो कश्मीर में थे। और फिर फूफो की मदद से जब मैं वहाँ से निकल आई, तब भी 4 माह तक हम ठोकरें खाते रहे, चक्री चौकी में जाते रहे, उधर थाना में जाते रहे, कोई हमारी नहीं सुनता था। हमें वहाँ से धक्के मार कर निकाल देते थे और कहते थे कि हमने उनके साथ नौकरियाँ करनी हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते।
फिर 4 माह के बाद उन्होंने पूरे घर को घेरा कर लिया था। घेरे की वजह से हमने 15 को फ़ोन किया और वो वहाँ से हमें निकाल कर लाई। उसके बाद आज का दिन है कि हम हर जगह पर ठोकरें खा रहे हैं। कोई रहने की जगह नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब्बू गुर्दे के मरीज़ हैं और बहन माजूर है। बचपन में चूँकि जब आपका अपना घर था तो उस वक्त जो है ज़ाहिर बात है वालिदैन जो है वो बच्चियों की हर फरमाइशें भी पूरी करते हैं। आज आपका घर नहीं है और इतने बचपन में आपने जो दुख और तकलीफ़ें काटी, उसके बाद क्या मतलब आप जब कभी एक पार्क में, कभी दूसरे पार्क में, कभी प्रेस क्लब के सामने, कितना दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर? मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं छोटी थी, मेरी अम्मी फौत हो गई थी, तो मैं मदरसे में रही हूँ और मदरसे में मेरे अब्बू मुझे 3 वक्त का खाना भी देकर आते थे कि मेरी बेटी को ये महसूस ना हो कि उसकी माँ फौत हो गई है। और इन्होंने ये जुल्म कर दिया। मैं अपने अब्बू की लाडली बेटी थी। अभी आप क्या अपील करती हैं जो मैं ये अपील करती हूँ हमारा घर हमें वापस करवाया जाए। उनको जेल में देखना चाहती हूँ ताकि दोबारा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करें। और उनको जेल में देखना चाहती हूँ, हमारा सामान मिल जाए और हमारा मकान मिल जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए कि हमें जान का ख़तरा है। अभी तक वो धमकियाँ देते हैं, हम कहीं पर जा नहीं सकते। अच्छा, आप जब देखती हैं कि ज़ाहिर बात है जो बेटी जो है वो वालिद का सबसे बड़ा सहारा होती है, जब आप वालिद साहब को इतना दुखी देखती हैं, इतने स्ट्रगल करते हुए देखती हैं, तो दुख तो होता होगा। मेरे अब्बू हर वक्त परेशान रहते हैं, उनकी सेहत और भी ख़राब हो जाती है, हर वक्त परेशानी रहते हैं। गुर्दे के मरीज़ हैं, खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर। ये छोटी बहन को उठा कर हम ठोकरें खाते रहे हैं। छोटी बहन माजूर है, उसको उठा के अब्बू हर जगह ठोकरें खाते रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इस फैमिली की दुख भरी दास्तान देखी और ये भी देखा कि किस तरह एक खुश और हंसता खेलता जो ख़ानदान है उसको कुछ लोगों ने अपने मफाद की खातिर जो है वो उजाड़ कर रख दिया। और ये बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, बचपन में जो अपने बच्चे होते हैं उनके बड़े ख्वाब होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं और इन्होंने भी बड़े ख्वाब देखे होंगे, इनकी बड़ी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन आज जो है वो इनके पास अपना घर भी मौजूद नहीं है और ये दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कभी किसी पार्क में, कभी किसी ग्राउंड में, या फिर ये प्रेस क्लब के सामने बैठे नज़र आते हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये गुजारिश है कि ये ख़ुसूसी तौर पर इसको देखें और इनको इंसाफ दिलाया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा आसान तरीके से जी सकें। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपने अब्बू की लाडली बेटी थी। सबसे जालिम जो है ना पुलिस है। हर जगह पर ठोकरें खा रहे हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है।